Today we are going to start chapter number 8, that is how do organisms reproduce. So we will read about the reproduction in organisms. Okay, reproduction in organisms. So first thing we should know what is reproduction. So reproduction, in simple words, we can say that it is the process by which living organisms produce new individuals. Living organisms produce new individuals similar to themselves. Similar to themselves. अपने जैसे ही वो जो है दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. That is called reproduction. This is the simplest definition of reproduction. Now, it is one of the most important characteristics. In first chapter also, when we started the life processes, in that we discussed many of the important characteristics of living things and living organisms. So this is also important characteristic of living organisms. Why? Because it ensures the continuity, or we can say survival. Most important क्या है? Survival. किसका survival? It ensures the survival of a race. Now what is race? Race is the we can say population of a particular organism. Okay, population of a particular organism. उस race में जितने भी मेंबर्स है, उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, उसका जो सर्वाइवल है उसको एंश्योर करता है रिप्रोडक्शन, है ना. एंड इट आल्सो एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. और इसी सर्वाइवल की वजह से जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है ऑन द अर्थ. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. So this is very important feature because it continues the life on the earth. Other words, we can say that reproduction is not necessary to maintain the life of the individual organism. जैसे कि दूसरी जो important life processes है, like respiration and other things, digestion and all. These are very much fundamental, or we can say बहुत जरूरी है. These are very important. But reproduction जो है, it is not that much important because it is important for the existence of the particular kind of organism. ये उनकी लाइफ में important नहीं है. Individually it is not important for that particular organism. कोई organism जो है वो बिना रिप्रोडक्शन भी उसकी लाइफ जी सकता है और उसकी डेथ हो सकती है. तो it does not make any effect on its life, है ना. ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे इंडिविजुअली उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस ऑर्गेनिज्म का जो रेस है, उसका जो पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, इस रिप्रोडक्शन का इफेक्ट होता है. क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की जो रेस है, जिसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं, उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं एंड दैट कंटिन्यूज द लाइफ. ओके, तो इस तरह से उस पॉपुलेशन में या उस रेस का जो हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस है, वो डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन के ऊपर. इट डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म particularly or individually. Okay, now we know that all the living things eventually die, they have to die, but the species to which they belong can survive. Now what is species? It is also the same thing related to this population, you know. Species means it is a particular kind of a group of organisms which are similar and they can interbreed. Here interbreed is very important when we talk about the species. Okay, तो interbreeding जो होती है एक population में, उसको हम कहते हैं स्पेसीज. उस ग्रुप को पर्टिकुलरली हम कहते हैं स्पेसीज. ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उस स्पेसीज में जो ऑर्गेनिजम्स है या उस स्पेसीज की जो मेंबर्स है, उसको वो पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन के ऊपर, बिकॉज दे कैन सर्वाइव लॉन्गर, है ना. वो पूरा जो रेस है, वो स्पेसीज है, दे कैन सर्वाइव लॉन्गर देन अ सिंगल लाइफ टाइम. अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में से अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इट डज नॉट अफेक्ट द फुल स्पेसीज और फुल पॉपुलेशन, है ना. बट अगर पूरी ये पॉपुलेशन अगर खत्म हो जाती है ना, तो इट इफेक्ट्स अ लॉट ऑन द एनवायरमेंट. ठीक है, हमने ऑलरेडी फूड चेन वगैरह सब आप पढ़ चुके हो, इकोसिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. तो आपको पता होगा कि दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर. तो इस तरह से जो ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, या फिर जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है पॉपुलेशन में ऐड होते रहते हैं. न्यू ऑर्गेनिजम्स आर एडेड इन द पॉपुलेशन एंड इस एडिंग ऑफ पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, इट कंपेंसेट बिटवीन द
इट कॉम्पनसेट्स द डेथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। तो जैसे ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती रहती है ना, उनकी जगह जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता रहता है। तो इस तरह से एक कंपनसेशन वहां पर होता है उस पॉपुलेशन के अंदर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रिप्रोडक्शन? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने बिल्कुल बिल्कुल अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं, या उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उसका रीजन क्या है वो हम अब देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कैट और डॉग अराउंड यू, है ना, उनके पॉपुलेशन में आपने देखा होगा। These cats, dogs and other animals, they do not look alike, do not look alike. But what happens? They look like their parents, है ना? If a cat is having some particular kind of color of its hair, है ना, hair color है suppose, अगर black cat है, तो हो सकता है उसके जो किटन्स होंगे, है ना, दे मे हैव ब्लैक कलर, और देयर में भी वेरिएशन, उसमें भी वेरिएशन हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ दिस इंटरब्रीडिंग इन द पॉपुलेशन। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें वेरिएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती हैं, पेरेंट्स के जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, बट नो बडी इज एग्जैक्टली सेम। कुछ अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें तो नो बडी इज एग्जैक्टली सेम टू देयर पेरेंट्स। बिल्कुल उनके, हो सकता है वो फिजिकली अपीयरेंस उनका सेम हो, बट मेनी अदर ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि हैबिट्स होती हैं, या फिर और कुछ जो जेनेटिकली इनहेरिटेड जो कैरेक्टर्स मिलते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, दे मे बी डिफरेंट। और उसके लिए क्या रीजन है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। We know that the different members of a species look similar, है ना, most of their characters are different also. So some characters are different and some characters are same. Okay, they all exhibit similarities in their basic character. जो उनके basic characters हैं, they are similar, है ना। जैसे कि अगर हम mammals की बात करें तो they have 4 legs, है ना, 4 limbs they have, then they are herbivores, और उनकी eating habits same हो सकती है, उनकी जो बॉडी के फीचर्स है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर सेम, एंड दे आल्सो हैव द पोटेंशियलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग, दे कैन इंटरब्रीड इन द सेम स्पीसीज। ओके, तो ये उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट दे आल्सो ट्रांसमिट दिस कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू उनके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी की जाती है या ट्रांसफर की जाती है। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट there must be some blueprints, there must be some blueprints of these characters and they are similar during the reproduction। तो ये blueprints मतलब कुछ ऐसे basic characteristics है, characters है, traits है, जो reproduction में as it is आगे की तरफ ट्रांसफर की जाती है, they are transferred to the next generation। अब ये होता कैसे है? इन ब्लूप्रिंट की कॉपीज बनती है। क्या बनती है? कॉपीज। Okay, so the blueprints of these copies are produced and then they are transmitted or they are transferred to the next generation, same to same। जो basic characteristics है, they are copied and they are transmitted to the next generation। Now how it happens? You must have studied about the chromosomes। हमने 9th class में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, what are chromosomes and what is the function। Okay, so these chromosomes are responsible for it। We know that chromosome in the nucleus of a cell, it contains the information of or information that is inheritance। जो inheritance होता है, information regarding inheritance, है ना। inheritance के लिए जो information चाहिए होता है, inheritance of features from parents to the next generation, वो ट्रांसफर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं, है ना। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, so these are present in the chromosomes। okay, so these DNAs are the source of information for making proteins, है ना। एंड अगर इस इंफॉर्मेशन में, इस डीएनए कंटेंट के इंफॉर्मेशन में अगर कहीं चेंज हो जाता है, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड एंड देयर विल बी अल्टरेशन ऑफ बॉडी डिजाइन, और इसी की वजह से बॉडी डिजाइन में अल्टरेशन आता है।
नाउ व्हाट इज अल्टरेशन? अल्टरेशन मीन्स चेंजेस। जब इन डीएनए में इनके इंफॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं, उस वजह से बॉडी डिजाइन में चेंजेस आते हैं, अल्टरेशन इसको हम कहते हैं, है ना। सो देयरफॉर क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट। बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का? सबसे इंपॉर्टेंट वो है डीएनए की कॉपीज बनाना, ताकि ये कॉपीज जो है डॉटर सेल में आगे सेंड की जाए। ठीक है, डॉटर सेल्स में ये एज इट इज कॉपी हो जाए। तो इसके लिए डीएनए कॉपिंग जो है दैट इज द बेसिक इवेंट हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, और ये जो डीएनए कॉपिंग है इट इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। इट इज नोन एज डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, कॉपिंग ऑफ डीएनए। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? डीएनए रिप्लिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? इट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या करते हैं? Two identical molecules of DNA are produced, or we can say copies of DNA इससे होती है। रिप्लिकेशन से दो कॉपीज होती हैं, किसमें? इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है उसमें ये कॉपिंग होता है। आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि बिफोर सेल डिवीजन दिस प्रोसेस अकर्स इन द सेल्स, है ना। अगर हम ये कॉपीज मींस इफ दिस कॉपीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कीपिंग one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out means another cell। अगर हम सिंपली ऐसे देखें इसका जो ट्रांसमिशन है या जो ट्रांसफर है वो अगर सिंपल होगा तो उसमें क्या होगा कि जो सेल ऑर्गेनल्स है, दूसरे जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, उनकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं। दिस कॉपीज ऑफ दिस डीएनए कैन बी डैमेज बिकॉज ऑफ अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, है ना। एंड दैट इज वाई इन सेलुलर कंपोनेंट्स को भी जो है एडिशनल कंपोनेंट्स इसमें बनते हैं, सेल एपरेटस जिसको हम कहते हैं, या सेलुलर कंपोनेंट्स। और डीएनए कॉपिंग के साथ ही इनका भी जो है सेपरेशन होता है दो सेल्स में। तो इसमें और इसमें डीएनए की कॉपी भी ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट होगी, और उसके साथ जो सेलुलर कंपोनेंट्स है दे आल्सो भी ट्रांसमिटेड। और इस तरह से जो सेल है टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो डिवीजन में, सेल डिवीजन में एक तो डीएनए रिप्लिकेशन की वजह से दो कॉपीज बनती है, दे आर ट्रांसफर्ड, एंड प्लस जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो नीडेड है सारी सेल प्रोसेसेस के लिए, दैट सेलुलर कंपोनेंट्स और सेलुलर apparatus also are transmitted and thus two copies of cells are formed. Okay, now during this process of copying DNA there are some chemical reactions in the cell। अब ये जो कॉपिंग होता है डीएनए का उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं सेल्स के अंदर होते हैं। दिस रिएक्शंस आर नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं, है ना। तो ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस देयर आर सम वेरिएशंस इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए। हर बार जब ये डिवीजन होता है तो उसमें ये वेरिएशंस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। और इसका इफेक्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। कॉपीज तो सिमिलर होती है, they are identical but not as identical to the original one। वो ओरिजिनल जो है उनके जैसे नहीं होते हैं। they have the basic structure same, जो भी बेसिक पिक्चर्स हैं वो सब कुछ सेम होंगे, बट स्टिल दे विल नॉट आइडेंटिकल। वो सिमिलर होंगे बट ओरिजिनल से डिफरेंट होंगे। ओके, अब इसमें से कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं, सम वेरिएशंस में लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। इन वेरिएशंस की वजह से कभी कभी सेल की डेथ हो जाती है बिकॉज इट कैन नॉट सर्वाइव, है ना, चेंजेस की वजह से। और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो उन सेल्स में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। तो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर वेरिएशंस की वजह से वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है दैट मीन्स इट विल डाई, एंड अगर वो सर्वाइव कर पाती है तो इट कैन हैव different features or drastic changes you can see in the cells। Okay, so this is why this variation we can say it is because of the DNA copying। now the surviving of cells are similar but they are different from each other, है ना। तो ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की सेल्स के अंदर, इट इज द इनबिल्ट टेंडेंसी, it is the inbuilt tendency in the surviving cells that they can do variations। वो variations कर सकते हैं during reproduction। reproduction के time ये variations होते हैं, and this variation is the basis of evolution।
इवोल्यूशन जो हुआ है इतने मिलियंस ऑफ ईयर से, जो लाइफ स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से जो कॉम्प्लेक्स बॉडी फीचर्स तैयार हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स बने जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन ओनली, है ना। अगर ये वेरिएशन नहीं होता है तो इवोल्यूशन जो है हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि हाउ इट विल बी विदाउट दिस वेरिएशन, है ना। तो इवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो हम अभी इवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, बट स्टिल यू नो दैट इवोल्यूशन जो है उसकी वजह से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं, देन कॉम्प्लेक्स जो बॉडी फीचर्स है वो मिले हैं ऑर्गेनिजम्स को। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्यों है। सो बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज निश, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। So niche is the way in which an organism fits into an ecological community or the ecosystem. अब ये niche जो है it involves its physical and environmental conditions, physical and environmental conditions. तो niche जो है it includes both physical and environmental conditions जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है ना, और साथ ही उसके जो इंटरेक्शंस है अदर स्पेसीज, है ना। अब कोई भी इकोसिस्टम है या कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी है तो देयर विल बी डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन इट, उस इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीसीज होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर अदर थिंग्स, फॉर शेल्टर, है ना। तो दैट interactions with other species is also included in this niche. So what is niche? It is the way in which a particular organism fits into its ecosystem or its environment. वो अपने इकोसिस्टम में इन निश इन फिजिकल और एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है उसके बीच में अपने आप को किस तरह से फिट रखता है, दैट इज कॉल्ड निश। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेरिएशन का, है ना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, वो मैं आपको बताती हूँ। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पेसीज is that it increases the chances of its survival. सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं दे आर increased because of variations. अब ये होता कैसे है, we know that environment is changing, है ना, एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और दूसरे जो फैक्टर्स है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो चेंज हो सकती है, it affects the animals or organisms that are living in the soil. Then water is also a physical feature which can change in the environment. Okay, तो ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में जिसकी वजह से उन स्पेसीज को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, दे हैव टू स्ट्रगल। एग्जांपल मैं आपका इसको बताती हूँ, सपोज अ बैक्टीरिया इज देयर एंड the accumulation of heat resistant variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in its environment rises too much due to the heat increase such as global warming or some other reason. कुछ जो बैक्टीरियाज है या कुछ और आप ऑर्गेनिजम्स ले लो, तो सपोज दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो सम बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, but what happens due to accumulation of this variation or trait, उसकी वजह से क्या होता है कि this bacteria become resistant to heat, this bacteria become resistant to heat, not all bacteria, some of these bacteria become resistant to heat and they can survive in the this temperature increase जो होता है एनवायरमेंट में, उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या कुछ और रीजन हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज का। लेकिन जो बैक्टीरिया जिनके अंदर ये वेरिएशन नहीं है, विदाउट वेरिएशन जो बैक्टीरियाज है, दिस बैक्टीरिया will not withstand or they will not be able to survive under the such situation, under the increase of temperature, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है, अगर वेरिएशंस होते हैं तो ये वेरिएशन जो है उस पर्टिकुलर एनिमल के या ऑर्गेनिज्म के जो मेंबर्स होते हैं, उस पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं, उनमें अक्यूमुलेट होते हैं एंड दस दे बिकम रेजिस्टेंट टू दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। ओके, तो ये बैक्टीरिया जिनके अंदर ये वेरिएशन है वो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनके अंदर ये वेरिएशंस नहीं है
वो बैक्टीरिया इसमें ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था। Thus we can say that if a population producing organisms were suited to a particular niche, किसी पर्टिकुलर निश में जब ये पर्टिकुलर रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सूट हो जाता है उस निश में, एंड इफ द निश वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर उस निश में कुछ अल्टरेशन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं उस पॉपुलेशन में, तो ये पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है ना। पूरी जो पॉपुलेशन है इट कैन बी वाइप्ड आउट और इट कैन बी वो खत्म हो सकती है। बट इफ सम वेरिएशन इज देयर, अगर उस पॉपुलेशन में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन है ना, कुछ इंडिविजुअल्स में अगर वो वेरिएशन है उस पॉपुलेशन में, तो वहां पर देयर आर सम चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वहां पर चांस किसका है? सर्वाइवल का, है ना। देयर आर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। So this is the importance of variation. So this variation thus is useful for the survival of species over the time. तो इस तरह से उस species का जो survival है वो ensure हो जाता है because of this variation. Now I think you understood this topic, what is variation and what is reproduction. So there are some questions in your book, textbook में जो question है in text, उसमें से कुछ 2-3 questions हम discuss करते हैं ताकि आपको और clear हो जाए ये topic. Okay. So first question it may be what is the importance of DNA copying in reproduction? Question is, what is the importance of DNA copying in reproduction? क्या importance है DNA copying का reproduction? Now see, DNA copying is an essential and basic event in the reproduction. Just now we have discussed why it is important, because DNA contains the information, it contains the information for inheritance. It contains the information for inheritance of characters or traits from parents to the next generation. Parents to the next generation. तो ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है उसका जो इंफॉर्मेशन है इट इज कैरिड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इट इज देयर इन द डीएनए. ओके, सो डीएनए प्रेजेंट इन द सेल्स अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस इट्स कॉपीज. अब वो कॉपीज जो प्रोड्यूस होती है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है सो दैट द इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में पास ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो किसका डेवलपमेंट होता है? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि अगले जनरेशन में पास होने होते हैं, वो उनका इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू, उसकी कॉपी के थ्रू नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट किया जाता है ना. और ये होता है डिवाइडिंग सेल्स और जिसको हम कहते हैं गैमेट्स के अंदर. तो इस तरह से डीएनए कॉपिंग जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द children. Okay, now second question may be, why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि वेरिएशन जो है एक स्पेसीज के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, बट व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्यों बेनिफिशियल नहीं है वेरिएशन? नाउ सी, जो स्पेसीज होता है, कोई भी स्पेसीज होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना. किसी भी पॉपुलेशन में हम देखते हैं तो बहुत बड़ा इसका नंबर होता है इंडिविजुअल्स का, पर्टिकुलर मेंबर्स का उस पॉपुलेशन में, है ना. एंड ईच इंडिविजुअल मे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट नेचर. अब इनमें जो वेरिएशंस होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं और वही डिफरेंसेस उनके ऑफस्प्रिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं. सो इंडिविजुअली दीज वेरिएशंस मे नॉट बी मच बेनिफिट, गिव द मच बेनिफिट टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन अ स्पीसीज फेसेस अ अल्टर्ड कंडीशन, अल्टर्ड यानी कि जब एनवायरमेंट में या उसके निश में कोई चेंज होता है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब चेंजेस होते हैं तो वो उसको अफेक्ट करता है. सम ऑफ इट्स मेंबर में सर्वाइव, कुछ मेंबर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज दे पजेस वेरिएशंस, है ना, एंड दे आर कैपेबल ऑफ फेसिंग सच चेंजेस. इन चेंजेस को फेस करने की कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाती है बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, है ना. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है दे सेव द स्पीसीज
फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए ये वेरिएशंस जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द सर्वाइवल of this particular population for over longer time period. So in short we can say that this variation is not useful or not beneficial for the particular individual, but it is beneficial for the species because it may happen in future that there may be changes in the conditions in which these populations are living, and these organisms or members of this population, they should have these capabilities to face the changes in the environment and they are able to survive. So this is why it is important for the species and not for the particular individual. Okay, then one more question we can discuss here: how does reproduction help in providing stability to population of species? रिप्रोडक्शन की वजह से जो है किसी भी जो स्पेसीज होती है उसकी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, हाउ इट हेल्प, रिप्रोडक्शन कैसे उसमें हेल्प करती है? सो आंसर इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूएशन, है ना, हमने पहले इसको पढ़ा था, जो कंटिन्यूएशन होता है किसी भी स्पीसीज या पॉपुलेशन का, पर्टिकुलर स्पीसीज का, उसके लिए जो है ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना, दे हैव रिप्रोडक्शन, and it helps in providing the stability to the population of a species by producing a new individual. न्यू इंडिविजुअल की जो है प्रोडक्शन होता है ना, एंड these individuals resemble to their parents, ये अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, है ना. दिस इज द रीजन, और इसी रीजन की वजह से जो है कैट्स कैन गिव बर्थ टू ओनली कैट्स, कैट्स जो है वो सिर्फ कैट्स को बर्थ दे सकती है, डॉग्स जो है दे कैन ओनली गिव बर्थ टू डॉग्स, है ना. और इस तरह से कोई भी स्पीसीज है, जैसे हमने कहा अभी कैट है, डॉग्स है, मंकीज है, डिफरेंट बर्ड्स है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है ना, मतलब उस स्पीसीज में उसी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐड होते रहते हैं. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन in giving the stability to the population of a particular species. Okay, then in our next class we will discuss about the modes of reproduction. You have already studied about it, जैसे sexual and asexual reproduction हम पढ़ेंगे next class में. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos.